in Psychology from Nurse University, Islamabad, and she's currently pursuing her master's degree in clinical psychology at Shifa Tamir Millat University. With a wealth of hands on experience, she has interned at reputable organizations such as Ask an Occupational Therapist, Autism Center, Pakistan Institute of Living and Learning, and currently she's been serving as a lead ambassador for the project Suicide. She is committed to spreading mental health awareness and supporting those in need. With her aspirations to become a competent clinical psychologist, she is passionate about helping people navigating their emotional journeys towards healing and recovery. So today we are having Miss Noor and a very warm welcome to our esteemed guest speaker. And thank you for taking out time for this webinar. Now we are just welcoming our guest speaker to share her insights on today's topic, which is emotional healing and recovery. So let's welcome our esteemed guest speaker. Over to you, Miss Nurulan. Thank you very much. Thank you so much, Tuba. Hello, Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing well. Today's topic is very relatable and interesting, and I hope आज हम जो भी सीखें आप लोग अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले. सो हम अपना वेबिनार आज स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ प्लीज. अच्छा, सो दिस इज एन ओवरव्यू कि आज हम जो भी इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी एन इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट हार्ट ब्रेक इज. ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरह अफेक्ट करता है, व्हाट आर सम कॉमन मिथ्स अबाउट हार्ट ब्रेक, एंड देन जो हमारा मेन आज का इमोशनल रिकवरी एंड हीलिंग का टॉपिक है. सो स्टेप बाय स्टेप किस तरह हम हील हो सकते हैं अपने हार्ट ब्रेक से, एंड देन वी विल कंक्लूड आवर वेबिनार. So before starting, why we are talking about this topic and why you guys should attend this session. सो ये जो टॉपिक है लाइक हार्ट ब्रेक, ठीक है, नो मैटर व्हाट्स योर जेंडर, कल्चर, एथनिसिटी और कंट्री, हार्ट ब्रेक इज अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस. ठीक है, लाइक थ्रू आउट आवर लाइफ हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया है. लेकिन अब जो हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, अब उससे हमने मूव ऑन किस तरह करना है और एक हेल्दी वे में हमने किस तरह से कोप करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हार्ट ब्रेक होता क्या है, किस तरह से वो हमें अफेक्ट करता है, हमारी वेल बीइंग को, हमारी लाइफ को. और अब जो एक चीज लाइक पास्ट में हो गई है, अब उसको पास्ट में छोड़ के हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड. सो आज हम इस बारे में बात करेंगे. बट बिफोर कि इस मैं आप लोगों को बताऊं हार्ट ब्रेक क्या होता है, आई वॉन्ट यू गाइज टू डिफाइन हार्ट ब्रेक इन वन वर्ड और सेंटेंस. लाइक आप चैट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम सब ने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, बट हम सबके जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम सब ने जो इमोशंस उस टाइम पे फील किए होंगे, वो सबके लिए डिफरेंट होंगे. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी व्हाट इज हार्ट ब्रेक फॉर यू in the chat box, please. Very chat box. We have an answer which is shattered. चैट बॉक्स आपको नजर नहीं आ रहा है? Aisha Khan has answered when our expectations aren't fulfilled by anyone. That is what heartbreak is meant to her. And Sanaula has answered shattered. Heartbreak बिल्कुल. means shattered. Guys, please show maximum participation. Um, Furkan has answered we didn't attain something in life which we expected to. That is basically what heartbreak is.
Exactly. True. Rebel Kamal has answered, I think that being deceived by someone is heartbreak. Then Mehroz Tokir has answered, getting deceived or cheated. Zara Sharif has answered, heartbreak could be defined as emotional distress from a bond, relationship, or from any sort of personal issues. Someone has answered, heartbreak is anxiety for them. Imaduddin has answered, could be like prolonged, never ending depression. So we have so many Thank answers. you so much for all your responses और आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. यही हम फील करते हैं हार्ट ब्रेक के बाद. पैनिक अटैक्स एंड माइग्रेन, बिल्कुल एग्जैक्टली. इमोशनल पेन, इंटेंस सैडनेस, बिल्कुल. ओके चले, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि साइकोलॉजी में इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है हार्ट ब्रेक को, और इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग. नेक्स्ट स्लाइड. So, heartbreak is basically an intense, deep emotional pain that you experience when you lose someone or something that is very important to you. ठीक है, अब यहाँ पे देर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर कि जब भी हम लोग हार्ट ब्रेक का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में रिलेशनशिप्स आते हैं कि अच्छा सिर्फ ब्रेकअप के बाद हार्ट ब्रेक होता है. ठीक है, लेकिन इसकी जो एसोसिएशन बनाई गई है, हार्ट ब्रेक इज सो मच मोर देन दैट. ठीक है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में एक डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं. मे बी किसी की लाइफ में उसका करियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सो इफ दे फेस फेलियर इन देयर करियर, ठीक है, तो उसमें भी वो हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो हार्ट ब्रेक सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होते, वो बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में हो सकते हैं. मे बी आप ये कोई बहुत मेकली आपने कोई फेलियर फेस किया है, करियर में आपको कोई फेलियर फेस हुआ है, इफ यू हैव फेस्ड बिट्रेयल, तो आप इन सब सिचुएशंस में हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है, तो हार्ट ब्रेक क्या होता है, ये एक बहुत इंटेंस और डीप इमोशनल पेन होता है. ठीक है, उसके बाद आप फील इसमें क्या करते हो, अच्छा हार्ट ब्रेक हो गया, उसके बाद यू फील, जैसा कि आप सबने बताया, सैडनेस, एम्प्टीनेस, ग्रीफ, डिप्रेशन. ठीक है, इस तरह के जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो हम फील करते हैं. ठीक है, अब हार्ट ब्रेक तो हमें समझ आ गया क्या है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है. सो हार्ट ब्रेक जो है वो हमें 3 लेवल्स पे इम्पैक्ट करता है. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, अब जब हम लोग हार्ट ब्रेक की बात करते हैं, हम लोग सिर्फ अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात करते हैं कि अच्छा पूरा दिन रोना आ रहा है या फिर बहुत स्टार्ट हूँ, लेकिन इसके बहुत ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं और ये हमें साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करता है. ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ हार्ट ब्रेक, तो ये हमें 3 लेवल्स पे अफेक्ट करता है. इमोशनल तो हम सबको पता ही है. ठीक है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस है. और जब हमारे इतने नेगेटिव इमोशंस हम फील कर रहे हैं तो वो हमें साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है कि हम अपनी जॉब पे, अपनी स्टडीज पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हमें एंजाइटी होती है, पास्ट के बारे में हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं कि ये सिचुएशन किस तरह से मेरे साथ हो गई, व्हाट इफ मैंने उस टाइम ये कर लिया होता, ये डिफरेंटली कर लिया होता. सो वी आर कॉन्स्टेंटली लाइक स्टक इन दैट लूप, वी आर कॉन्स्टेंटली स्टक इन आवर पास्ट. उसकी वजह से जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी होता है. तो अब हम लोग स्ट्रेस भी ले रहे हैं, एंजाइटी भी ले रहे हैं. ठीक है, इतनी ज्यादा सैडनेस भी है, तो उसका क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है. आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी सुना होगा कि अगर कोई इंसान लाइक हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं. मे बी कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल लाइक वो सोते नहीं है पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन. और कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइक वो 18 आवर्स 20 आवर्स कॉन्टिन्यूसली वो सोते हैं टू अवॉइड दैट अनकंफर्टेबल फीलिंग, टू अवॉइड दैट पेन. ठीक है, सो हार्ट ब्रेक क्या करता है, वो हमें 3 लेवल्स पे इम्पैक्ट करता है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल. ठीक है, जिसमें हमारे फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं. और उसमें ये भी होता है कि जो एक्टिविटीज हम लोग लाइक पहले इंजॉय करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना इंजॉय करते थे, हमारा
किसी भी एक्टिविटी में लाइक कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, हम लोग लाइक वी फील चेस्ट पेन और हमारी पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है, माइग्रेन्स हो रहे होते हैं और लाइक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस वजह से हो रहे हैं। बट इन रियलिटी क्या होता है कि वो जो हार्ट ब्रेक आपने इतनी इंटेंस चीज एक्सपीरियंस की है, ये सब उसके इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, सो अगर हम स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ की बात करें कि मेंटल हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करता है, सो फर्स्ट पॉइंट इज इट ट्रिगर्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अच्छा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा ब्रेन है वो हार्ट ब्रेक को परसीव करता है एज अ फिजिकल पेन। ठीक है, मतलब जिस तरह फिजिकली जब हमें कोई इंजरी होती है, ठीक है, सो जो हमारे ब्रेन में उस टाइम पे जो एरियाज एक्टिवेट होते हैं, सेम ब्रेन एरियाज हमारे एक्टिवेट होते हैं जब वी एक्सपीरियंस हार्ट ब्रेक, जो कि एक इमोशनल पेन है। ठीक है, सो उस वजह से क्या होता है, दैट्स व्हाई लाइक हमें एक फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं और वो एक हार्ट ब्रेक इतना इंटेंस इमोशन होता है क्योंकि हमारा सेम ब्रेन एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आवर ब्रेन इज परसीविंग दिस इमोशनल पेन एज फिजिकल पेन। ठीक है, सेकेंड चीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इंक्रीजेस एंजाइटी। हम लोग इतना ओवर थिंक करते हैं, लाइक कॉन्स्टेंटली उस सेम सिनेरियो जो पास्ट में हो गया हम उसको अपने माइंड में रीप्ले करते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं कि मे बी मैंने उस सिचुएशन में ओवर रिएक्ट कर दिया, अगर मैं ये कह देती सो मे बी ये ना होता, अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में ये चीज ऐड कर देता तो आज मुझे स्कॉलरशिप मिल जाती, आज मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता। सो हम लाइक अपने पास्ट में स्टक रहते हैं, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं और उस वजह से क्या होता है कि एक वरिंग हमारी इंक्रीज होती है एंड वी फील वेरी रेस्टलेस। ठीक है, लाइक प्रेजेंट मोमेंट में किसी चीज में हमारा दिल नहीं लगा होता, वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दैट हैज कॉज्ड अस हार्ट ब्रेक। और अगर इतनी ज्यादा कॉन्स्टेंट प्रोलॉन्ग, ठीक है, आपकी सैडनेस है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, आपने कंप्लीटली खुद को आइसोलेट कर लिया, आप अपने फैमिली मेंबर से नहीं मिल रहे, आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल रहे, उनके साथ हैंग आउट नहीं कर रहे, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन। ठीक है, अगर आप एक हेल्दी वे में अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करेंगे। देन लास्टली ऑब्वियसली इतने नेगेटिव इमोशंस है, आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो, तो ये आपकी डेली फंक्शनिंग को और आपकी डेली लाइफ को ये डिस्टर्ब करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर सकते एंड अगेन लॉस ऑफ जॉय। आपको किसी भी एक्टिविटी में लाइक जो चीजें आप पहले एंजॉय करते थे, मे बी आपकी जो हॉबीज हैं, स्पोर्ट्स है, एनीथिंग, आपको किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा, आफ्टर दिस ये जो इफेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ है, देयर वाज अ स्लाइड अबाउट द myths that are related to heartbreak, but वो for some reason ऐड नहीं हो सके, तो मैं आपको जनरली खुद वो बता देती हूँ कि हम सब ने ही अपनी लाइफ में ये myths जरूर सुने होंगे, स्पेशली जो ये है कि टाइम हील्स ऑल वुंड्स। ठीक है, बस आप टाइम दो, इस चीज को आप खुद ही ठीक हो जाओगे। तो ये सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है दैट्स रिलेटेड टू हार्ट ब्रेक कि खुद ही कोई भी चीज ठीक नहीं होगी, स्पेशली एज इंटेंस एज अ हार्ट ब्रेक, जब तक आप एक्टिवली एफर्ट नहीं डालोगे खुद को ठीक करने की। ठीक है, तो विद टाइम आप हील नहीं होते, विद एक्टिव एफर्ट आप हील होगे कि आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करोगे, आप डिफरेंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज करोगे, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे कि अच्छा ये मेरे साथ हुआ क्या है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, अब मैं इससे किस तरह मूव फॉरवर्ड कर सकता हूँ, तब तक आप हील नहीं होगे। ठीक है, सो टाइम हील्स ऑल वुंड्स, विद टाइम यू गेट ओवर इट, इट्स अ मिथ। ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं होता जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे। फिर उसके बाद सेकंड मिथ इज कि यू नीड क्लोजर फ्रॉम द अदर पर्सन टू मूव ऑन। ठीक है, ये मिथ एक बहुत ही लाइक आपको उस पास्ट में ही स्टक रखता है, आपको ये मूव फॉरवर्ड होने नहीं देता कि आप कहते हो कि अच्छा अगर मैं उस सिचुएशन में वापस चला गया ना और अगर मैंने ये चीज ठीक कर ली, या अगर आपका ब्रेकअप हो गया, आपको आप यू लाइक कीप ऑन going back to that person for some kind of explanation, justification for your heartbreak, और वो obviously आपको कभी भी नहीं मिलेगी। So ये जो closure है ये आपको कभी किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं मिलेगी, और जब तक आप एक्सटर्नल सोर्सेस इनको सीख करते रहोगे, आप इससे
रिकवर नहीं कर सकोगे, आपका हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, बिकॉज यू आर स्टिल स्टक इन योर पास्ट कि नहीं, जब तक मुझे क्लोजर नहीं मिलेगा मैं तो इसी सिचुएशन में स्टक रहूंगा। ठीक है, तो जो क्लोजर है वो विद इन आता है कि आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस ले आओ कि ओके ठीक है, मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई है, इट वॉज वेरी पेनफुल, बट यू नो सम थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल, सो अब मैंने इससे आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, सो क्लोजर comes from within, not any external source. फिर थर्ड चीज ये है कि द बेस्ट वे टू गेट ओवर समवन इज टू फाइंड समवन न्यू। और ये आई थिंक सबसे वर्स्ट मिथ और मिसकंसेप्शन है जिसपे लोग बिलीव करते हैं कि अच्छा कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा तो आप पिछले को भूल जाओगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप का जो इमोशनल बैगेज है, ठीक है, जो आपके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब कुछ आप अपने न्यू रिलेशनशिप में अपने साथ लेके जाओगे। सो ऑब्वियसली दैट वुड लाइक लीड टू अ डिजास्टर कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मेरा एक फ्रेश और एक मेरा न्यू स्टार्ट है जब आपने अपने पिछले जो इमोशंस है उसको प्रॉपरली प्रोसेस ही नहीं किया और आप उससे रिकवर ही नहीं हुए। ठीक है, सो और लास्टली हमारा ये है कि हार्ट ब्रेक मेक्स यू वीकर, जबकि इन रियलिटी हार्ट ब्रेक्स मेक यू सो इमोशनली रिजिलियंट एंड स्ट्रॉन्गर कि आपने अपनी लाइफ में इतनी इंटेंस पेनफुल चीज एक्सपीरियंस की है। ठीक है, और उसको एक्सपीरियंस करने के बाद आपने उस इमोशन अपने इमोशंस को प्रोसेस किया है और अपनी डेली लाइफ में आप वापस आने की कोशिश कर रहे हो। सो ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक्स मेक्स यू लाइक वेरी वेरी सेल्फ अवेयर कि अच्छा मेरी क्या गलती थी, मैंने आगे क्या नहीं करना, क्या करना है। एंड ऑल्सो इट मेक्स यू इमोशनली रिजिलियंट कि आपने अपनी लाइफ में इतनी इंटेंस इमोशनल चीज देख ली होती है कि उसके बाद जो छोटे मोटे लाइफ के स्ट्रेसेस होते हैं वो आपको इतना इजीली अफेक्ट ही नहीं करते। ठीक है, अच्छा, तो मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज कि हार्ट ब्रेक अगर आप सबने एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली किया ही होगा अपनी लाइफ में। सो आपका क्या कोपिंग मैकेनिज्म है, आप किस तरह डील करते हैं? सो यू कैन राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। अच्छा, A option is I cry and isolate myself, I distract myself with work or studies, I talk to my friends or family for support, or I stalk my ex on social media. So obviously there are some हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज, देयर आर सम अनहेल्दी वेज। ठीक है, जिसके जो हम डील करते हैं। अच्छा, ऑप्शन एवरी ऑप्शन डिस्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आई क्राई अ लॉट, ऑप्शन सी। और इसके अलावा भी अगर आप कोई कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। कीपिंग माई सेल्फ बिजी, फ्रेंड्स एंड फैमिली, नन ऑफ दीज। अच्छा, सो जलील आप क्या कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हो? प्रे, यस। Isolation and crying, and friends too. I isolate myself from everything. Give reality check to myself. बिल्कुल, face it and feel the emotions fully. Write, mind diversion, catharsis. बिल्कुल, tell someone. ओके, अब हम आगे देखते हैं कि हीलिंग प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। ओके, सो वी हैव 5 स्टेप्स, ठीक है, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैंने ओवरऑल ये लिखे हुए यहाँ पे एक्सेप्ट Is she audible for everyone? No, I think there is an internet no, issue on her it side. got stuck.
Let me check with her. I think ma'am has lost her connection, internet connection. She's not audible. She has no internet, but definitely she'll be trying to rejoin. Please wait for some time. Sorry for the inconvenience. ये स्लाइड्स कौन शो कर रहा है? प्रेजेंटर की है शो हो रही है या किसी और के पास है? अगर किसी और के पास है काइंडली वन से स्टार्ट कर दें. नहीं, वो स्किप हो गई है. Okay, her internet is good now. She must be rejoining. Hello guys, I'm really sorry my internet got disconnected. अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? We were talking about the healing process. So जो हमारा first step है that is acceptance and acknowledgement. Next slide. अच्छा, अब जो एक्सेप्टेंस है ना, ठीक है, इससे आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और यही लाइक सबसे डिफिकल्ट स्टेप है कि टू एक्सेप्ट के अच्छा ये सिचुएशन मेरे साथ अब हो गई है. क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लोग क्या करते हैं, डिनाइल में रहते हैं, डिसबिलीफ में रहते हैं. ये तो सिचुएशन मेरे साथ हो ही नहीं सकती, ये तो मेरे साथ हुआ ही नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ब्रेकअप हो, कहेगा नहीं हमारी तो छोटी सी लड़ाई हुई है, अब हमारा पैचअप हो जाएगा, हमारा तो ब्रेकअप नहीं हुआ. तो आप जब तक इस डिनाइल में रहोगे, जब तक आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आपका हील आप हो ही नहीं सकते, आप ठीक है रिकवर नहीं कर सकते. उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट. अच्छा, आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपने अपने इमोशंस को भी एक्सेप्ट करना है. ऑब्वियसली इतना पेनफुल चीज आपने एक्सपीरियंस की है, ठीक है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल होंगे. सो प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस ना करें एंड डोंट ट्राई टू एक्ट के एवरीथिंग इज फाइन, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब नॉर्मल है, सब ठीक है. ठीक है, नॉर्मली आप काम कर रहे हो और आप बिल्कुल अपने इमोशंस को अवॉइड कर रहे हो. या कुछ लोग क्या करते हैं कि वो खुद को इतना बिजी रखने लग जाते हैं कि मैं बिल्कुल सोचूं ही ना इस बारे में. सो उससे ये होता है कि जो आपके इमोशंस है वो आपके अंदर ही बिल्डअप होते रहते हैं और फिर आपका एक बहुत ही इंटेंस किस्म का आउटबर्स्ट होता है. ठीक है, वो बहुत बुरे तरीके से आपके इमोशंस बाहर निकलते हैं या मे बी दे कैन लीड टू डिप्रेशन एज वेल. ठीक है, सो आपने क्या करना है कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और साथ ही अपने इमोशंस को भी एक्नॉलेज करना है कि इट्स ओके टू फील सैड, इट्स ओके टू क्राई. अच्छा, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम लोग स्टेजेस ऑफ ग्रीफ को देखें कि उसमें भी जो हमारा लास्ट स्टेप है दैट इज एक्सेप्टेंस. कि ग्रीफ के पूरे प्रोसेस से जब आप गुजर गए और आप एक्सेप्टेंस तक पहुंच गए, उसके बाद फिर आपका हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा. ठीक है, तो अगर इनको हम ब्रीफली देखें तो अच्छा, सबसे पहले तो आता है डिनाइल. ठीक है, मेरे साथ तो ये हुआ ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ रही है, ठीक है, वो कहेगा कि नहीं मे बी अभी मुझे कुछ दिन बाद दोबारा से ईमेल सेंड कर दे, मैं तो रिजेक्ट नहीं हो सकता, मेरी इतनी अच्छी एप्लीकेशन थी, मे बी कुछ उन्होंने मुझे गलती से रिजेक्शन की ईमेल सेंड कर दी. ठीक है, तो वी गिव ऑल काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस बिकॉज उस सिचुएशन को, उस हार्ट ब्रेक को एक्सेप्ट करना इज वेरी पेनफुल कि नाउ दैट पर्सन इज नो लॉन्गर इन माई लाइफ, दिस हैज एंडेड, या मुझे ये जॉब नहीं मिली, ये पोजीशन अब चली गई है. सो सबसे पहले होता है हमारा
डिनाइल का स्टेज, ठीक है। अब जब हम डिनाइल से निकलते हैं तो हम आता है हमारा एंगर का, इतना हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है, खुद को ब्लेम करते हैं, दूसरे इंसान को ब्लेम करते हैं, सिचुएशन को ब्लेम करते हैं कि व्हाट इफ मैं ओवर रिएक्ट ना करती, व्हाट इफ वो इंसान ऐसे कर देता, या मैं अपनी एप्लीकेशन में बस ये लिख देता तो ये हो जाता, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं पूरी, और बहुत ज्यादा हमारा ये होता है कि उस सिचुएशन का हम लोग एक हर सिचुएशन की एक पॉजिटिव साइड होती है, ठीक। तो हम ये नहीं देख रहे कि मतलब इट्स ओके अगर मेरे साथ ये हो गया है, अब लाइफ में सारी चीजें मुझे तो नहीं मिल सकती है, लाइफ में हमेशा मुझे सक्सेस ही तो नहीं मिलेगी, तो इट्स ओके अगर मेरे साथ ये हो गया। बट हम क्या करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ, वो कैसे सिलेक्ट हो गया, उसके तो मुझसे कम जीपीए था, उसको ये कैसे जॉब मिल गई, ठीक है। तो एंगर में हम क्या करते हैं, हम इस तरह की अनग्रेटफुल बातें करते हैं कि वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ। अच्छा, और बार्गेनिंग में भी हम लोग सेम चीज यही करते हैं कि व्हाट इफ मैं उस टाइम ये कर लेती, सो मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, ठीक है, ये ना होता, वो ना होता। बट इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई रिलेशनशिप है, कोई एकेडमिक रिलेटेड आपका है, सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो हर चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बार्गेनिंग हम ये कर देते हैं कि मे बी अगर मैं ये कह देती, अगर मैं ये कर लेती, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। और फिर डिप्रेशन, ठीक है, जो इंटेंस इमोशंस हम लोग फील कर रहे होते हैं, जैसा कि हम सब ने एक दूसरे से डिस्कस किया, सैडनेस और ग्रीफ, और बस दिल कर रहा होता है पूरा दिन कमरे में बंद करके खुद को रोते रहे, किसी से बात ना करें, खाए नहीं, सोए नहीं, ठीक है। तो ये इंटेंस जो हम लोग इमोशंस फील करते हैं वो फोर्थ स्टेज होता है। एंड फाइनली लाइक इन सबसे गुजरने के बाद थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आ जाती है कि मे बी लाइक इट्स टाइम कि आई शुड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। मेरी मतलब एक बहुत पेनफुल सिचुएशन हुई है, आई रियली वांटेड टू गेट दैट स्कॉलरशिप, आई रियली वांटेड दैट जॉब, बट इट्स फाइन, लाइक मेरी लाइफ एंड नहीं होगी एंड आई शुड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आई शुड डू समथिंग अबाउट इट कि मैं अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को क्यों खराब कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारा ग्रीफ का लास्ट स्टेज है एक्सेप्टेंस, और फिर इस स्टेप पे जब आप पहुंचेंगे उसके बाद आपकी हीलिंग जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, इसी में आ जाता है हमारा वैलिडेटिंग इमोशंस विदाउट सप्रेसिंग देम, कि अपने इमोशंस को आपने बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, सप्रेस नहीं करना, ठीक है। आपका जो भी तरीका अपने इमोशंस लेट आउट करने का, कुछ लोगों को अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से बात करके अच्छा फील होता है, कुछ लोगों को लिख के अच्छा फील होता है, ठीक है। आपका जो भी इमोशनल एक्सप्रेशन है, जस्ट ट्राई कि आप अपने इमोशंस को रिलीज करो, उनको सप्रेस नहीं करो, उनको अपने अंदर बिल्डअप नहीं होने दो। तो ये आप स्टेप्स यूज कर सकते हैं कि आपको कोई इमोशन फील हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे माइंड में क्या होता है, हर टाइम इतनी क्लैरिटी तो नहीं होती ना कि मैं फील क्या कर रहा हूँ। अगर आप किसी से पूछो कि तुम हार्ट ब्रेक के बाद क्या फील कर रहे हो, सो दे विल बी लाइक कि यार मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। सो आप सबसे पहले क्या करो कि अपने इमोशन को आप एक नेम दे दो कि what exactly am I feeling, ठीक है। आप अपने इमोशंस के साथ अकेले बैठो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि अच्छा, आई फील हर्ट, आई फील सैड, आई फील एम्प्टी, और उस इमोशन को नेम देने के बाद आप क्या करेंगे, एंड दैट्स ओके, ठीक है, विदाउट एनी जजमेंट। ये नहीं कि आप सेल्फ क्रिटिसिज्म शुरू करो कि ओ माय गॉड यू आर सो वीक, यू आर फीलिंग हर्ट, कि इतनी छोटी सी बात है, तुम हर्ट हो रहे हो, तुम सैड फील कर रहे हो। आपने खुद को बिल्कुल भी जज नहीं करना, ठीक है। विदाउट एनी जजमेंट यू हैव टू बी काइंड टू योरसेल्फ एंड यू शुड से दैट इट्स ओके इफ आई एम फीलिंग सैड। ऑब्वियसली मैंने कितनी पेनफुल चीज एक्सपीरियंस की है, तो ऑब्वियसली मैं सैड हूँ, ऑब्वियसली मैं हर्ट हूँ, एंड इट्स फाइन, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अच्छा, अगर आपके इमोशंस या आपके माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स की क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप जर्नल कर सकते हो अपने थॉट्स को, ठीक है। राइटिंग रियली हेल्प्स रिलीज पेंट अप इमोशंस, और पर्सनली मैं जर्नलिंग को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में यूज करती हूँ, और लाइक ट्रस्ट मी इट्स सो इफेक्टिव, बिकॉज समटाइम्स इस तरह होता है कि कुछ लोग दूसरों के सामने खुद को वीक नहीं शो करना चाहते, ठीक है। वो नहीं चाहते कि उनके फ्रेंड से वो अपनी कुछ शेयर करेंगे, यू नो, आई फील सैड, आई फील एम्प्टी, और इस तरह से। सो जर्नलिंग उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो जो भी फील करें, ठीक है, विदाउट एनी फिल्टर आप
अपने रॉ इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपनी डायरी में लिख लें। तो उससे ये होता है कि आपकी ना एक आपको क्लैरिटी आ जाती है, अच्छा मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आपका हीलिंग का प्रोसेस ईजी हो जाता है कि आपको समझ आ जाती है कि अच्छा मैं सैड हूँ तो मैं खुद को कैसे हैप्पी कर सकता हूँ, अच्छा मैं एम्प्टी फील कर रहा था मैं कैसे फुलफिल फील कर सकता हूँ, मैं कैसे कंटेंट फील कर सकता हूँ। ठीक है, सो जर्नलिंग कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन टॉक टू अ ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली। ठीक है, कुछ लोगों के बहुत अच्छे सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जिनसे बात करके उनको अच्छा फील होता है, उनको पता होता है कि मुझे एक बहुत सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर, इंस्टेड ऑफ मुझे लाइक क्रिटिसाइजिंग या बुलिंग, वो मुझे एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, मुझे वो अंडरस्टैंड करेगा और मुझे हेल्प करेगा टू मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ठीक है, यू कैन एक्नॉलेज योर फीलिंग्स विदाउट लेटिंग देम कंट्रोल यू। आप माइंडफुल हो, ठीक है, ये ना हो कि आप कहो कि अच्छा मैं सैड हूँ, अब तो ये मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, अब तो ये मेरी पूरी आइडेंटिटी है, मैंने तो कुछ करना ही नहीं है। यू शुड बी माइंडफुल कि अच्छा इट्स जस्ट अ फेज, ये नहीं कि परमानेंटली मैं पेन में ही रहूंगा, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है, उसी वजह से मैं ये इमोशंस फील कर रहा हूँ, एंड विद कंसिस्टेंट एफर्ट मेरी जो टेम्परेरी पेनफुल स्टेट है खत्म हो जाएगी और फिर से मैं लाइक बैक टू लाइफ चला जाऊंगा। ठीक है, अच्छा फिर है सेल्फ कंपैशन एंड इमोशनल प्रोसेसिंग। तो एक्सेप्टेंस के बाद, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो हम लोग नहीं करते, दैट इज टू बी काइंड टू योर सेल्फ, टू बी अंडरस्टैंडिंग। लाइक हमारी कोशिश होती है कि हम खुद को फोर्स करें और जल्दी से जल्दी हम ये कहें कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तो ये जो ठीक है और जो खुद को नॉर्मल करने का, वो जो खुद को आप जितना खुद को फोर्स करेंगे उतना ही आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिले होता जाएगा। ठीक है, सो यू शुड बी काइंड टू योर सेल्फ एंड यू शुड बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे एक ये बात मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जिस तरह आपने ये बात सुनी भी होगी कि टॉक टू योर सेल्फ लाइक यू वुड टॉक टू अ क्लोज फ्रेंड। ठीक है, अगर आपके किसी दोस्त का हार्ट ब्रेक हो, हम अपने फ्रेंड्स को कितनी तसल्ली देते हैं कि इट्स ओके, तुम तो इतने अच्छी हो, तुम तो इतने अच्छे हो, तुम्हारे साथ तो बहुत ये हुआ, कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक, कोई छुट्टी कर लो यूनिवर्सिटी से, जॉब से कुछ दिन छुट्टी कर लो, ये हम उनको इतनी तसल्ली देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन सेल्फ, हम इतने सेल्फ क्रिटिक, तुम ये चीज कैसे फील कर सकते हो भाई, तुम सैड कैसे हो सकते हो, तुम कोई वीक इंसान होगी, तुम ऐसे हर्ट फील करोगे। तो ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, ठीक है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप एक्चुअली में इमोशनली रिकवर करना चाहते हो, यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ विद वेरी काइंडनेस। इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक, इट्स ओके टू फील दिस इमोशन। सही, अच्छा दोबारा से आप जर्नलिंग बहुत इफेक्टिव है, वो आपको एक क्लैरिटी देगी, इमोशंस आपको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगी। और वही बात है कि आप एक ना जो जर्नल आप अपने कमरे में बैठ के लिख रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत ही एक जजमेंट फ्री स्पेस है आपके लिए कि अगर आप ये सोचते हो कि अच्छा मैं दूसरे इंसान से अगर अपनी फीलिंग्स शेयर करूंगा कि मैं इस तरह फील करूँ तो मुझे वो जज करेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं कितना नेगेटिव हूँ या मैं कितना वीक हूँ। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में इस टाइप का कोई भी फियर है तो आप जर्नल में लिख सकते हो, विच इज अ वेरी जजमेंट फ्री स्पेस बेसिकली। और यू कैन टॉक टू अ ट्रस्टेड फ्रेंड जो आपको पता है कि आपको इमोशनल सपोर्ट एंड वैलिडेशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, सेल्फ ब्लेम एंड गिल्ट बहुत ज्यादा होता है हार्ट ब्रेक के बाद। या तो हम दूसरे इंसान पे सारी सिचुएशन ब्लेम कर देते हैं, ठीक है, कि वो तो है ही ऐसा, उसने तो मेरे साथ ये किया, लाइक आई एम द विक्टिम। ठीक है, या फिर सारा ब्लेम आप पूरी सिचुएशन का खुद पे ले लेते हैं कि अगर उस टाइम मैं ये ना बोलती, अगर उस टाइम मैं चुप रह लेती, अगर उस टाइम मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती, सो मे बी ये ना होता। ठीक है, तो उस सेल्फ ब्लेम एंड गिल्ट से आप किस तरह से निकलोगे, आपके जो भी, जब आपको इस टाइप के थॉट्स आ रहे हो ना कि मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेती, आपने अपने थॉट्स को एक तो लिखा, ठीक है, आपको समझ आ रही है मैं क्या सोच रहा हूँ, फिर आपने अपने थॉट्स को क्या करना है, चैलेंज करना है, आपने उनको रिफ्रेम करना है, जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट आपने लिखी है आपने क्या करना है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कि अगर आप सोचो आई एम नॉट गुड इनफ, क्यों भाई आप क्यों गुड इनफ नहीं हो, एक इंसान तो आपकी वर्थ नहीं डिफाइन कर सकता, राइट। फिर उसके बाद है रिकॉग्नाइजिंग शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें ये चीज, ये रिकॉग्नाइज, अच्छा आपका गिल्ट कैसे खत्म होगा अगर आप ये बात रियलाइज करोगे कि हर सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर मैं डिफरेंटली रिएक्ट कर भी लेती, अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में वो चीज ऐड कर भी देता, so there are multiple factors that are involved in every situation।
ठीक है। तो जब तक वो सब अलाइन नहीं होंगे तो मैं किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मुझे हर चीज का ब्लेम खुद पे लेने की जरूरत नहीं है और मुझे गिल्टी फील करने की, मुझे रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो ये आप कर सकते हो कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी सिचुएशन है उसमें हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ सारा ब्लेम खुद पे नहीं लेना और खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिसिंग सेल्फ काइंडनेस। ठीक है। तो आप जब ब्लेम नहीं लोगे, खुद को गिल्ट नहीं करोगे, तो आपने क्या करना है, आप काइंडनेस शो करें ऑब्वियसली। ठीक है। सो बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद क्या है, ब्रेकिंग द इमोशनल अटैचमेंट। अच्छा, सो हार्ट ब्रेक हमें क्यों होता है, क्योंकि वो जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है, उसमें हम लोग इतने ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं कि जब वो चीज हमसे लाइक चली जाती है तो वो हमें एक बहुत डीप इमोशनल उसका इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पूरा साल अपनी एक यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पे लगाया है, ठीक है, एंड दैट वाज माय लास्ट, दैट वाज माय ड्रीम, उस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होना, कि वाओ मैं तो अमेरिका चली जाऊंगी एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है। पूरा साल आपने उसके प्रोसेस को 100% दिया, इतनी मेहनत की, एंड फाइनली जब आपको वो रिजेक्शन मिली तो ऑब्वियसली आप इतना इमोशनली इन्वेस्टेड थे और आप अपनी लाइक पूरी जो सेल्फ वर्थ है ना, आप उस पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड कर लेते हो कि अच्छा ये होगा तो इसका मतलब मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मेरी इज्जत होगी सब दोस्तों में और फैमिली में कि अच्छा इसका तो यहाँ पे एडमिशन हो गया। और जब वो चीज आपको नहीं मिलती तो यू फील सो लॉस्ट कि लाइक नाउ व्हाट, कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरी क्या सेल्फ वर्थ है। सो ये जो इमोशनल डिटैचमेंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई रिलेशनशिप या जो भी सिचुएशन है, कि इमोशनली जो हमने खुद को इतना इन्वेस्ट किया हुआ था, अब वो हमने खुद को कैसे बाहर निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो कि अच्छा ये सिर्फ मेरा एक थॉट है, रियलिटी में इसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जो मैं सोच रहा हूँ ये मेरी सिर्फ ओवर थिंकिंग है, ये मेरी सिर्फ नेगेटिव थॉट्स हैं। फिर आपके जो इरेशनल बिलीव्स हैं, आप जैसे अगर किसी का ब्रेकअप हुआ, ठीक है, वो इंसान सोचता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अनलवेबल, तो आप उसको पॉजिटिव बिलीव और आप उसको एक रियलिस्टिक बिलीव से रिप्लेस करो कि मतलब दुनिया में वो एक ही इंसान था, अगर उसने मुझे छोड़ दिया इसका मतलब कि नाउ आई एम अनलवेबल। जबकि अगर मैं अपने अराउंड देखूं, आई हैव सो मेनी पीपल इन माय लाइफ हु लव मी। ठीक है। तो मैं एक इंसान की वजह से क्यों सोच रहा हूँ कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं एक यूनिवर्सिटी की रिजेक्शन की वजह से क्यों सोच रहा हूँ कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो आपने अपने इरेशनल बिलीव्स को क्या करना है, रिप्लेस विद मोर रैशनल, रियलिस्टिक, ठीक है, एंड पॉजिटिव बिलीव्स। फिर उसके बाद आप यू कैन यूज मेंटल डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। अच्छा, अब हार्ट ब्रेक से पहले जो आप एक्टिविटीज करते थे, जो आप हॉबीज एंजॉय कर सकते थे, आप उनको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और what you can do is आप अपनी पर्सनल गोल सेटिंग कर सकते हैं कि अच्छा मैं ये स्किल सीखूंगा। आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं कि अच्छा इस साल मैंने ये जगह जरूर विजिट करनी है, मैंने ये स्किल सीखना है, मैंने ये स्पोर्ट्स खेलनी है। ठीक है। तो आप इस तरह से हेल्दी वे में अपने जो इमोशंस उनको चैनल आउट कर सकते हैं और खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारी सोशल सेटिंग्स में कुछ इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के ट्रिगर्स होते हैं हमारी इन्वायरमेंट में जो हमें ना बार बार हमारे पास्ट की याद दिला रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जितनी भी कोशिश कर लो कि अब तो मैं मूव ऑन करके रहूंगी, अब तो मैं भाई सेल्फ ग्रोथ जर्नी पे हूँ, बट फिर आप मे बी अपने पास्ट में से किसी ऐसे बंदे से बात कर लेते हो जो आपको वो आपके इमोशनल साइकिल को ट्रिगर कर देता है। मे बी वो बंदा उस चीज से रिलेटेड है, या आपके इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी ट्रिगरिंग चीज है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में रिजेक्शन, आपको जिस यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन मिली है, ठीक है, तो अभी भी वो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल वगैरह सेंड कर रही है, तो आप जब जब उनकी ईमेल देखोगे, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ोगे, या फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करते हो, ठीक है, आप उनके स्टूडेंट्स को देखोगे, तो वो आपका ट्रिगर करेगा और आपको वो फिर पास्ट में ही वो स्टक रखेगा। ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
फर्म बाउंड्री सेट करें कि अच्छा मैंने इस इंसान से कांटेक्ट नहीं करना, मैंने अपनी एनवायरनमेंट में से ये चीजें रिमूव करनी है, सोशल मीडिया से अगर आप बहुत इफेक्ट हो रहे हो तो मैंने ये डिलीट करना है, ठीक है। आप उन फिर ट्रिगर्स को अपनी लाइफ से बिल्कुल रिमूव करें, उन लोगों से आप बिल्कुल बात ना करें, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी आप पॉजिटिव कंटेंट एक तो कंज्यूम करें, दूसरा अपनी खुद को सराउंड करें विद पॉजिटिव पीपल, बिकॉज जो नेगेटिव लोग हैं या जो आपके सिर्फ पास्ट की बात करें, वो यार तुम्हारे साथ तो ये हुआ, अच्छा अगर उस टाइम तुम ये कर लेते ना तो ये ना होता, तो वो आपको, ऐसे लोग आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, और यू शुड अवॉइड दोज काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। अच्छा हमारा स्टेप 4 क्या है, रीबिल्डिंग आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ। तो जिस तरह मैंने बात की कि इतनी ज्यादा आप जब इमोशनली इन्वेस्ट होते हो ना, तो आप अपनी पूरी सेल्फ वर्थ उस पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड कर देते हो। या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो आप इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो कि 24 आवर्स आप उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, आप उनसे ही बात कर रहे हो, आप उनके ही मैसेज का वेट कर रहे हो। तो जब वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, नाउ यू आर लाइक कि अच्छा इस इंसान के अलावा मेरी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, ठीक है, और अब मेरा जो इतना मेरे पास फ्री टाइम है इसका मैं क्या करूं, लाइक मेरी अपनी क्या सेल्फ वर्थ है। तो हार्ट ब्रेक में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जो मोस्टली लोग एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज दे जस्ट कंप्लीटली लूज देयर सेंस ऑफ सेल्फ, लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाते हैं लोगों को। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिकनेक्ट विद थिंग्स दैट ब्रिंग यू जॉय एंड फुलफिलमेंट, ठीक है। वही बात है कि जो आपकी हॉबीज थी, जो आपने इस पर्टिकुलर चीज के लिए छोड़ दी थी, ठीक है, कि मैंने बस इसी पे फोकस करना और मैंने किसी चीज पे फोकस नहीं करना, आप न्यू इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो, न्यू स्किल्स सीख सकते हो, पर्सनल गोल सेट कर सकते हो। माइंडफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कभी कभी इतने अनग्रेटफुल हो जाते हैं, एक छोटी सी चीज अगर हमारी लाइफ में गलत होती है, बुरी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हमें हार्ट ब्रेक हुआ, तो हमारी लाइफ में और जितनी अच्छी चीजें चल रही हैं हम उन सबको इग्नोर करके बस उस एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो वी शुड टेक टाइम कि अच्छा यार मेरी तो हेल्थ भी इतनी अच्छी है, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, मुझे कोई फाइनेंशियल इश्यू नहीं है, मुझे और कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, ठीक है, जिनके साथ मैं इतना एंजॉय करता हूँ, मैं इतना प्रिविलेज इंसान हूँ कि मैं इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ या मैं इतनी अच्छी जगह जॉब कर रहा हूँ। सो जब आप लिस्ट बनाते हो कि मेरी लाइफ में कितनी चीजें अच्छी हैं, तो वो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है कि मतलब मैंने अपना टाइम कितना ज्यादा वेस्ट कर दिया एक ऐसी चीज पे अब जो मेरे पास्ट में हो गई है, जबकि मेरे प्रेजेंट में सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है और मैं अपने प्रेजेंट को और भी ज्यादा अच्छा बना सकता हूँ, ठीक है। सो माइंडफुलनेस, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है, एंड ग्रैटिट्यूड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अच्छा जो पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन होती हैं वो हर किसी को अपनी लाइफ में जरूर ऐड करनी चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी इफेक्टिव कि आई एम इनफ, आई एम लवेबल, इस तरह की आपको खुद से बातें करनी चाहिए। और जो भी ये सेल्फ क्रिटिसिज्म है, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जिस तरह वन ऑफ माई प्रोफेसर वो हमें उन्होंने ये बात बोली कि जो भी बात आप अपने मुंह से निकालते हो आप अपने ब्रेन को सजेशन दे रहे हो, तो ठीक है। सो आपको अपने मुंह से अच्छी बातें सिर्फ निकालनी चाहिए, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बोलें, उसका एक्चुअली में आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। देन लास्ट इज मूविंग फॉरवर्ड विद इमोशनल रेजिलियंस। इसमें क्या है कि हमारी लाइफ का जो भी अगर कोई अच्छी ठीक है सिचुएशन हुई है उससे हमें खुशी मिलेगी, और अगर कोई बुरी हुई है तो इट्स नॉट के समथिंग लाइक ठीक है कि ये सिर्फ वेस्ट चला गया, मेरा तो टाइम नहीं, तो एनर्जी, वो हमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लेसन सिखाता है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि अपने उस सिचुएशन में, अपने उस सिनेरियो पे हमने रिफ्लेक्ट करना है कि इसने मुझे क्या सिखाया है, मैंने अपनी इस गलती से क्या सीखा है जो कि मैं आगे रिपीट ना करूं। क्योंकि अगर आप अपनी इस सिचुएशन पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, आप दोबारा से उसी ट्रैप में स्टक हो जाएंगे, आप दोबारा से वही सेम मिस्टेक करेंगे और आप दोबारा से फिर आपको वही हार्ट ब्रेक और इमोशनल पेन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट डिड दिस एक्सपीरियंस टीच मी अबाउट लव, ट्रस्ट एंड सेल्फ वर्थ के यू नो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुद को एक लाइक लिमिट तक इमोशनली इन्वेस्ट करें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इंसान के साथ, कि आपकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी कभी भी लूज ना हो किसी भी सिचुएशन में। बिकॉज अगर वो सिचुएशन थोड़ी सी भी खराब हो गई तो आपको लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है।
फिर उसके बाद रिकग्नाइज योर ग्रोथ, लाइक यू सर्वाइव समथिंग सो डिफिकल्ट एंड सो पेनफुल, तो इट अलोन लाइक प्रूव्स योर रेजिलियंस, ठीक है। अगर कभी भी आपको ऐसा फील हो रहा हो यार मैं कितना वीक इंसान हूँ, मैं रो रहा हूँ बैठ के उस इंसान के लिए, कि मैं रो रहा हूँ बैठ के क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट हो गया, सो आपको इस चीज को इस तरह से देखना चाहिए कि मैंने इतनी पेनफुल चीज एक्सपीरियंस की है, जिसको मैंने अपना इतना टाइम दिया, अपनी इतनी मैंने इमोशंस इन्वेस्ट किए, और उससे मैंने लाइक मैंने मूव ऑन कर लिया है, आई हैव मूव फॉरवर्ड, लाइक मैंने वो चीज बर्दाश्त करके अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया। सो यू शुड रियली बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, एंड ये आपका एक एविडेंस है आपकी रेजिलियंस का, ठीक है, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। And turn pain into purpose. Use your experience to support others, pursue new goals, or develop emotional strength. So आप अपने experience दूसरों के साथ share कर सकते हैं, उनकी help कर सकते हैं कि अच्छा मेरे ये मैंने एक healthy coping strategy use की थी, तुम भी ये कर सकते हो। And ज़्यादा से ज़्यादा मतलब instead of dictating कि तुम ये करो तुम वो करो, आप अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह ऐसी किसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, सो यू शुड जस्ट बी प्रेजेंट फॉर देम, ठीक है, जस्ट बी देयर फॉर देम, जस्ट प्रोवाइड देम अ नॉन जजमेंटल एंड अ सेफ स्पेस, कि जहां वो एटलीस्ट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस तो कर सके, ठीक है। एंड बिफोर कंक्लूडिंग आई वुड जस्ट लाइक टू नो दैट for you guys, which of these is the hardest part of breakup? ये जो 4 options हैं, ठीक है, accepting that it's over, letting go of memories, dealing with loneliness, or seeing them move on. अच्छा, तो for me I would say letting go of memories, ठीक है, इतनी like when you have such happy memories daily, आपको कोई ना कोई चीज उनका it reminds you of them, and accepting that it's over. I think acceptance जो है वो सबसे मुश्किल चीज है, कि अच्छा अब ये like खत्म हो गया है, I have to move forward no matter how painful it is. So चैट बॉक्स में मैं देख लेती हूँ आप लोगों ने क्या कहा है। B and C, dealing with loneliness, yes, dealing with loneliness, okay. Option D, acceptance and dealing with loneliness. B and C, बिल्कुल। अच्छा, लोनलीनेस के लिए तो ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि जब वो चीज एंड हो जाती है आपकी लाइफ से, नाउ यू हैव सो मच फ्री टाइम, और जब आपके पास फ्री टाइम होता है तभी आप लोनली फील करते हो। सो उसमें जो आज हमने सीखा कि आप एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, आपकी जो हॉबीज होती थी, जो चीजें आप पहले करते थे, मे बी इट्स पेंटिंग और रीडिंग एंड एवरीथिंग, आप जो एंजॉय करते थे आप दोबारा से वो स्टार्ट कर सकते हो। मे बी आप कोई न्यू स्किल जो आप हमेशा से सीखना चाहते थे आप वो कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज सो मच यू कैन डू विद योर फ्री टाइम। तो जब आप खुद को, लोनलीनेस का सोल्यूशन ये कि खुद को बिजी रखो, जितना बिजी रखोगे उतना आप कम लोनली एंड सैड फील करोगे अपने बारे में। सो टू कंक्लूड आई वुड जस्ट से दैट इट्स ओके नॉट टू बी ओके, नॉट बी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, एंड हार्ट ब्रेक कोई आपकी लाइफ का एंड नहीं है, ठीक है। इट वाज जस्ट वन एक्सपीरियंस जो हो गया, ठीक है, इट वाज पेनफुल, हमने पेन एक्सपीरियंस कर लिया, बट नाउ इट्स ओवर। अब हमने मूव ऑन करना है लाइफ में, हमारी पूरी लाइफ हमारे आगे पड़ी हुई है जिसको हम बेहतर बना सकते हैं। सो हार्ट ब्रेक इज अ बिगिनिंग नॉट एन एंड, इट्स अ पार्ट टू हीलिंग एंड ग्रोथ, एंड हीलिंग टेक्स टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने अभी आपको 5 स्टेप्स सिखाए और आप लोग कहो मैंने तो भाई जर्नलिंग भी कर ली है, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने तो रिफ्लेक्शन भी कर दी है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। आपने खुद को फोर्स नहीं करना, यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम, ठीक है, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट उनका सेंसिटिविटी लेवल होता है। कुछ लोगों को कुछ महीने लग जाते हैं मे बी मूव ऑन करने में, कुछ को कुछ सालों लग जाते हैं, एंड इट्स फाइन, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इसकी कोई ऐसी टाइम लाइन नहीं है कि इस ही हफ्ते में मैंने तो खुद को ठीक करना है, मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा। सो यू हैव टू बी वेरी काइंड टू योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, ठीक है, क्योंकि हीलिंग जो है वो इट टेक्स टाइम। लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डालोगे तो टाइम गुजरता रहेगा, लेकिन आप हील नहीं होगे, आप उसी पॉइंट पे स्टक रहोगे जहां पे आप डे 1 पे थे। एंड एवरी स्टेप मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, बिल्कुल आप में इतनी ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है अपने बारे में। And transformation through reflection and support. You deserve love, joy and meaningful connections. ठीक है, कोई भी एक इंसान या एक सिचुएशन आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं करती है।
So I think that's it from my side. और अभी आप लोग चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखें और जो भी आपका फीडबैक है. Acha, just a minute. I'm sharing the other link for the question answer session. So I'm ending this link. Okay. Keep joining that so that we can continue from here. Thank you.